أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں جملہ فعلیہ اور اس کا تھرڈ پارٹ۔ انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں اس میں مفعول کی اقسام، کہ مفعول کتنے طرح کے ہیں۔ مفعول 5 طرح کے ہیں اور اسی لیے ان کی 5 قسمیں ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ اور یہ ہے مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق۔ اب مجھے چیٹ میں یہ بتائیں کہ میں نے ان سب حرکات میں یہ تنوین والی حرکت یہاں پہ کیوں لکھی ہے؟ اور کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن ہاں یہ تنوین لکھی ہوئی ہے، کیوں؟ جی ہاں، اور کوئی آنسر؟ اس لیے لکھا ہے میں نے یہاں پہ تنوین کہ ہم لوگ کر رہے ہیں فعل، لیکن بات ہم کریں گے اب اسم کی، ٹھیک ہے؟ اس اسم کی بات کریں گے جس پر فعل کا اثر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے، نکرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے یہاں پہ تنوین اس لیے لگا دی کہ یہ بات بہت کلیئر رہے کہ اب ہم جن چیزوں کا ذکر کریں گے وہ فعل نہیں بلکہ اسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور مفعول حالت نصب میں ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب حالت نصب میں ہی ہوں گے، یہ پانچوں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شارٹ ڈیفینیشن ہے، بالکل آپ کو اسی طرح ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد کرنی ہے، لکھنی ہے، اور اگزامپل دیکھ لینا۔ اگزامپل سے پھر اگزامپل کو آپ دیر تک غور کریں، لیکن اس کی ڈیفینیشن کوشش کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی اور جامع ہو، مطلب کمپلیٹ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ وہ منصوب اسم جس پر فعل کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہو، جس کے اوپر فعل کا کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے کسی کو مارا، تو وہ شخص جس کو مارا گیا، فعل کا عمل اس کے اوپر ہوا۔ اب کہاں مارا، کب مارا، کیوں مارا، یہ بھی مفعول ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم آج دیکھیں گے۔ اب تک جو آپ کو زیادہ تر مفعول کی اگزامپل اور چیزیں اور باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ یہ فرسٹ والا ہی، یعنی مفعول بہی کو ہی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اوپر ڈائریکٹ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم فعل کو شروع میں لے کے چلتے ہیں تو بس اسی کی مدد سے چیزوں کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلا مفعول بہی، وہ منصوب اسم جس پر فعل کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی فعل کا کام جس پر کیا گیا ہو۔ یہ تھوڑا سا ثقیل ڈیفینیشن اور یہ آسان سی ڈیفینیشن۔ اب یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت کا ایک حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا۔ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ تم ہے، جو یہاں پہ تم دکھ رہا ہے، قتل تم میں جو یہ تم چھپ تم لوگ آ گیا ہے نا، حاضر جمع مذکر حاضر کی، یہ تم، اور نفسن یہ ہے اب مفعول۔ اس کے بعد جو مفعول آیا نصب کی حالت میں کہ نفس کو قتل کیا گیا، اور یہ اکثر کو کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کو قتل کیا، جان کو قتل کیا۔ تو یہاں پہ قتل کیا یہ فعل ہو گیا، خیر میں اردو میں کیوں بتاؤں، یہاں دیکھیے یہ یہاں پہ فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں اس کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر فرسٹ اور فورتھ صیغہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی صیغہ ہو، تو آگے آپ کو پھر فاعل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فاعل اسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں بار بار کروں گی جس سے یہ بات آپ کو ایک دم سیٹ ہو جائے۔ جب آپ نے کوئی فعل کا صیغہ دیکھا اور وہ فرسٹ اور فورتھ باکس کا صیغہ نہیں ہے،
इसका मतलब है कि फाइल उसी के अंदर है। अगर फाइल जाहिर होता तो फर्स्ट या फोर्थ बॉक्स का होता, तो मुझे फाइल फिर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने फाइल यहीं पे डिसाइड किया कि ये यहाँ पे ये तुम मुझे बता दे रहा है कि फाइल क्या है, और नफसन मफूल हो गया। सबकी समझ में आ गया तो आगे चले। अगर कोई सवाल है तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। इसको कहते हैं मफूल बिही। ठीक है। दूसरा है मफूल फीही। फी, जैसे काम कहाँ पर हुआ, अगला टाइप की मीनिंग आ रही है, लेकिन बहरहाल मफूल फीही का मतलब है कि ये मफूल, ये मंसूब इस्म उस फेल के वाक़े होने की जगह या वक्त बताता है कि वो किस जगह हुआ और किस वक्त हुआ। और इसको फिर ज़र्फ भी कहते हैं। मुझे इसको भी ब्लू से कर देना चाहिए था, वो रह गया, तो आप कर लीजिएगा कि इसको ज़र्फ भी कहते हैं। इसको ज़र्फ़ ज़मान कह देते हैं, और जो मकान बताए, जो जगह बताए, उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं, और ये भी मंसूब होता है। आप देखें, वज़कुरू, ये वाला वाव एक्स्ट्रा हो गया टाइप करने में, हो गया। वज़कुरुस्मा रब्बिका बुक्रतम व असीला। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह और शाम, तो ये वक्त बताया जा रहा है। किस वक्त, मतलब अल्लाह ताला को अपने रब का जिक्र करो सुबह और शाम। तो ये हो गया ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान का एग्जाम्पल मैं नहीं लाई हूँ, मतलब सिर्फ यही एक लाए। तो इसी तरह से ज़र्फ़ मकान भी जो होगा वो भी नसब की हालत में आपको एक इसम मिलेगा, जो कि उस फेल के वाक़े होने की जगह बता रहा होगा। ठीक है, और वो भी मंसूब होगा, और उसे कहते हैं मफूल फीही। ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान आपको पता है। उसके बाद थर्ड है मफूल लहू। ये फेल का सबब। इस तरह से भी कहते हैं कि पॉइंट भी बताते हैं कि मफूल बिही को पहचानने के लिए फेल के साथ किस को करके सवाल कीजिए। वो फेल लीजिए, कत्ल, तुम कत्ल किया तुमने, तो किसको कत्ल किया, किसको तुमने कत्ल किया। तो सवाल अगर आप किस को करके करें तो जवाब में आपको ये वाला मफूल मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप कहां या कब करके सवाल करें तो आपको, कहां करके करेंगी तो आपको मकान मिल जाएगा, और कब करके करेंगी तो जमान मिल जाएगा। फेल को लेके, फेल को लीजिए और पूछिए कि वो कहाँ हुआ, जिक्र कहाँ करना है, जिक्र कब हुआ, तो आपको इस तरह से ये वाला मफूल मिल जाता है। चैट आपकी ओपन है मेरे पास, अगर कुछ होगा तो आप चैट में प्लीज लिख लीजिए। फिर मफूल लहू वो मंसूब इस्म जिस फेल का सबब या मकसद बयान करे। तो क्यों, क्यों करके जब आप ये काम क्यों हुआ तो आपको ये मिल जाता है, रीजन बताता है ये। वला तख्तुलु औलादकुम, तुम अपनी औलाद का कत्ल मत करो। तो क्यों, क्यों ना कत्ल करें, खशियत इमलाक था ये जवाद, ये जबर मुझे टाइप करनी थी ना टाइपिंग में। कुरान में देखो इस तरह की गलती हो जाए तो बहुत हो लगता है। जबर की जगह पे वाद होता है, शिफ्ट नहीं दबाया मैंने। तो खशियत इमलाक, तो ये वजह बता रहे हैं कि किस वजह से ना। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये मुरक्कब आपको किस में मिल रहा है, मंसूब मिल रहा है। किसी भी मुरक्कब की एराबी हालत उसके मुदाफ से पता चलती है, तो आप ये इससे कंफ्यूज नहीं करेंगी। ठीक है। तो खशियता इमलाक ये वजह बता रहा है यहाँ पे, कत्ल ना करने की वजह, या इनके कत्ल करने की वजह क्या है और उससे मना किया जा रहा है।
फिर मफूल माहू, ये वो मंसूब इसम होता है जो वाव के बाद में आता है, और इस वाव का मीनिंग होता है, जैसे साथ, साथ का मीनिंग दे रहा होता है, मां का मीनिंग दे रहा होता है। जैसे अपने काम को और अपने शरीकों को जमा कर लो, फअजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, अपने काम को जमा करो, और सिर्फ काम को नहीं, उसके साथ किसी और भी बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए इस और का मीनिंग क्या आ रहा है, माँ का मीनिंग आ रहा है, साथ का मीनिंग आ रहा है कि काम के साथ अपने शरीकों को भी जमा कर लो। तो ये हमेशा वाव के साथ आता है, वो मंसूब इस्म जो वाव के बाद हो, जो माँ, और ये वाव जो हो वो माँ यानी फाइल या मफूल के साथ का माने दे। ये वाव जो है, ये साथ का मीनिंग फाइल के साथ भी दे सकता है और मफूल के साथ भी दे सकता है। और याद रखें कि मफूल बाहू आपको वाव के बाद ही नजर आएगा। और एक है मफूल मुतलक, लास्ट वन, मफूल मुतलक। यहाँ पे सीन रह गया, सुभान अल्लाह, एकदम लास्ट मिनट मैंने आज ये पीडीएफ बनाया, इतनी सारी गलती आ रही। वो मंसूब नकिरा इस्म जो फेल की ताकीद या वजाहत के लिए लाया जाए, आम तौर पर फेल के मादे से इसका मस्दर होता है। आप ये देखें, तकलीमन, ये कल्लमा, इसका रूट लेटर क्या है, फेल का रूट लेटर क्या है, काफ लाम मीम। जब उसी रूट लेटर से फेल, अब देखिए यहाँ पे वकल्लम अल्लाहु मूसा, बात हो गई थी, बात यहाँ पूरी हो चुकी है, और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। यहाँ तकलीमा लाने का मीनिंग क्या होता है, फिर उसी रूट लेटर से जब एक नकिरा मंसूब इस्म लाया जाता है, तो ये इस फेल में और ज्यादा ताकीद और वजाहत, क्लैरिटी और ताकीद का माना लेके आता है। और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, कलाम करना, इसका तर्जुमा जाहिर है, ये आपको पता है कि ये मस्दर है, तो इसका तर्जुमा इस तरह से कलाम करना। और ये असलूब है अरबिक का, जिसमें जब फेल के ही रूट लेटर से एक नकिरा इसम लेके आया जाता है, तो उससे इस फेल में और ज्यादा ताकीद और वजाहत भी कहीं कहीं आती है। और इसीलिए जब हम लोग दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अब यहाँ पे बात हो गई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ज़ुल्मन, कि हमने अपनी जान पर बहुत 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 ज्यादा जुल्म किए। ये भी पूरा नहीं होता तो फिर कसीरन, जुल्म इतना करते हैं कि उसके आगे फिर कसीरन भी लेके आते हैं। तो ये कसीरन नहीं मुतलक हुआ, ठीक है, लेकिन जुल्मन मुतलक इसलिए हुआ कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो ज़लमतु के ही रूट लेटर से इसके बाद जब एक नकिरा इस्म आया, मंसूब नकिरा इस्म, तो वो मफूल मुतलक कहलाता है। तो ये पांचों मफाइल खमसा समझ में आ गए। तो फिर आगे चलें, कुछ और करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कर लें। मुझे तो मफूल मुतलक जब पता चला और फिर उसके बाद मैंने दुआओं को देखा या और भी, तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा, इन द सेंस कि उन दुआओं की कैफियत समझ में आई। ठीक है, तो मफूल मुतलक है, इसको बहुत गौर से, और बाकी चीज़ें तो हमें चूंकि आयात को समझने में हेल्प करती हैं, तो ये चीज़ तो ये पता हमें सब होना चाहिए। लेकिन मफूल मुतलक का आप जब देखेंगी दुआओं में और दूसरी बातों में, तो पता चलता है कि क्या इसका माना है। तो बहुत ज़्यादा ताकीद, मतलब जब ये हम तो यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं जो हमने अभी दुआ वाला लेके आए हैं, दुआओं में अक्सर आप देखेंगे कि आखिर में आता है। तो इसी तरह जब इसी दुआ में आगे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मगफिरत के लिए कह रहे होते हैं, तो उसमें देखें कि मगफिरत का भी फिर हम मफूल मुतलक लेके आते हैं
کہ گناہ بھی ہم نے کیے بہت کثرت سے اور مغفرت بھی ہم اسی کثرت سے چاہتے ہیں. تو اسی اس دعا کے اینڈ میں آپ دیکھیے گا کہ آخر میں مغفرت کے لیے بھی مفعول مطلق آیا. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.